स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? Yes, sir. Yes. Okay, so in DAX, we started DAX, right? Study itself. So what we saw is calculated columns versus measure. That we can understand, right? What is calculated column and what is measures and how we create those. Okay. So next part is those are the some concept regarding the calculated columns and measures. We're going to see one by one. What is this mean columnar storage? It means when you create a calculated column, it stores the data. But when you create a measure, it doesn't store data, right? It is just a function, just an expression. So whenever you create a calculated column, it stored the data. That's why we called as a columnar storage when we created a calculated column. But when we create a measure, it is just an expression. So it doesn't store any kind of a data. Okay. Again, next part is the aggregation. Aggregation is nothing but whatever the aggregated functions, sum, mix, max, mean, count, distinct count, average, whatever the functions we have, the same functions are available in Power BI DAX also. So using those functions we do the aggregations. So mostly DAX is used for the aggregation purpose. Okay, so and those three concepts, filtering, filter context and iterator, that we are going to see today itself. Okay, so move to the next. This is the difference. Anyway, I'm going to share this PPT with you all. You can understand the difference. So calculated columns, why we create the calculated column. This is the just an bullet points from this calculated columns point of view. What it says, represent a single value per row. As we know that calculated column जब हम create करते हैं तो हर एक सेल के लिए वो एक वैल्यू प्रोवाइड करता है टेबल के अंदर, राइट? कंप्यूट एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन एंड रिफ्रेश। व्हेन आप जब आप उसको क्रिएट करते हो उस टाइम पे वो जो भी डेटा टेबल में अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एंड इफ़ यू रिफ्रेश योर रिपोर्ट, आपके टेबल में नया डेटा ऐड होता है तो उस केस में उस पर्टिकुलर कैलकुलेटेड कॉलम में भी नया डेटा ऐड हो जाता है, बिकॉज इट इन एक्सप्रेशंस आप उस आपने एग्जिस्टिंग कॉलम को यूज करके ही उसको बनाया हुआ है उस टेबल के अंदर। Results are materialized and stored with the table. What it means? Materialized means it's hard coded, stored in the table, right? Attached to a specific table. Again, this specific to the column. अगर आप column create कर रहे हो तो वो किसी table में attach रहेगा, right? Separately नहीं रहेगा, individual नहीं रहेगा, वो किसी table के अंदर एक create हो जाएगा। Normally can only see the row they exist in related to the idea of a row context. More on this later. We'll see later on this. So what it means basically, whatever the data you have in the table, based on that data, it shows you a result. Okay, or the context. So let's say आपने कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है बेस अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस को मल्टीप्लिकेशन करके। सो जो कॉन्टेक्स्ट आपने प्रोवाइड किया है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए इन दो कॉलम का, सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस और वट एवर द कैलकुलेशंस वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा पर एक सेल के अंदर। And then again this which is important can be used in the filters or values results areas. So जैसे हमें पता है कि कैलकुलेटेड कॉलम्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स काइंड ऑफ एट्रीब्यूट। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन टोटली कि कैलकुलेटेड कॉलम जो आपने क्रिएट किया है वो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहा है या एक एट्रीब्यूट या टेक्स्ट वैल्यूज प्रोवाइड करके दे रहा है। सो बेस्ड अपॉन दिस यू कैन यूज दोज इन अ वैल्यू सेक्शन इटसेल्फ एंड इन अ फिल्टर कंडीशन इटसेल्फ। फिल्टर कंडीशन मतलब जैसे हमने कल देखा कि हमारे पास जो स्लाइसर फिल्ट विजुअलाइजेशन है पावर बीआई में, उसके अंदर वी कैन ओनली पुट कॉलम्स नॉट मेजर्स। सो दैट फिल्ट्रेशंस कैन बी हेल्प और कैन बी डन यूजिंग कॉलम्स ओनली। ओके, ये अंडरस्टूड है सबको? Okay, so now example of this calculated column, we already see one or two example, right? We create some like a ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस का मल्टीप्लिकेशन लेके हमने एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया था। दिस पीपीटी गिव्स यू एन अनदर एग्जांपल लाइक ग्रॉस मार्जिन। जो ग्रॉस मार्जिन क्या है, लेट्स से मेरे पास सेल्स के टेबल में, दिस इज माय सेल्स टेबल एंड इसमें मेरे पास एक प्राइस का कॉलम है एंड मेरे पास एक कॉस्ट का कॉलम है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन इज नथिंग बट अ price minus cost, right? This price minus this cost gives me a gross margin. So how we calculated this
in a table, we simply create a calculated column and put this formula over there कि I wanted to difference between this price column and the cost column. So that is why this new column is created over here, gross margin. This is the example of calculated column. Then come to the measure again, as we yesterday discussed, it gives you a single value per data model. मीन्स जब आप मेजर्स को ट्रैक करके कैनवास पे लेके आते हो तो आपको एक वो सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है, राइट? सो मेजर ऑलवेज गिव यू अ सिंगल वैल्यू, बट when you analyze those measures or you use those measure in a visualization along with some attributes, let's say मैंने total sale का measure बनाया है and I wanted to use those measures against a country column. So मैंने country का एक column लिया and total sale का measure लिया, then visualization आपको क्या show करेगा? आपको country wise total sales show करेगा. So that's what हर एक country के लिए वो आपको एक single value provide करके देगा. So again, this represent a single value as per your data model computed at a run time. What it means, जब आप उसको यूज करोगे विजुअलाइजेशन में, देन एट द मोमेंट वो आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा. वो प्रायरली रिजल्ट कैलकुलेट करके स्टोर करके नहीं रखेगा. जब आप उसको यूज करेंगे देन एंड देन ओनली वो रन टाइम होगा या रन होगा एंड आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. रिजल्ट्स आर डायनामिक बेस्ड अपॉन फिल्टर्स. सो व्हाट इट मीन्स, सो आपने जो टोटल सेल्स का मेजर बनाया, इफ़ यू अप्लाई, लेट्स से मैंने कंट्री का एक कॉलम लिया एंड उसको टोटल सेल का मेजर उसमें यूज़ किया, सो इट गिव्स मी अ कंट्री वाइज टोटल सेल. बट लेट्स से मैंने कुछ फिल्ट्रेशंस अप्लाई किया, मैंने एक स्लाइसर क्रिएट किया विजुअलाइजेशन में और उसमें मैंने कंट्री का कॉलम जो है वो भी ले लिया, तो वो मुझे कंट्री की लिस्ट दिखाएगा. इफ़ आई सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर कंट्री, तो विजुअलाइजेशन में वो मुझे क्या करेगा, उसी कंट्री का डेटा शो करेगा. सो इट मीन्स आपकी विजुअलाइजेशंस में जो भी आप फिल्टर्स अप्लाई करते हो, वो उन फिल्टर्स को लेके आपको डेटा रियल टाइम में डायनेमिकली फिल्टर करके शो करता है. दैट्स व्हाट दिस मेजर्स डू. या आपने जो कैलकुलेशंस बनाया है उसमें भी आप फिल्टर्स अप्लाई करते हैं. वी विल गोइंग टू सी कि हाउ वी अप्लाई द फिल्ट्रेशन इनसाइड द मेजर्स. ओके, नॉट अटैच टू एनी टेबल. जैसे हमने यस्टरडे डिस्कस किया कि भले ही मेजर किसी आपने टेबल में क्रिएट किया हो, लेकिन वो उस टेबल से अटैच नहीं रहता. वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, आप उसको किसी भी टेबल में मूव कर सकते हो. दैट्स वाई yesterday we create a one dummy tables and we store all the measures inside the dummy table. ओके, सीज ऑल द डेटा एट वंस. इसका मतलब क्या है, आपको एग्रीगेटेड लेवल पे रिजल्ट मिलता है. सीज ऑल द डेटा एट वंस मीन्स, लेट्स से मैंने टोटल सेल का मेजर बनाया एंड इफ आई ड्रैग इट इनटू द कैनवास, इट शोज मी ओवरऑल टोटल सेल्स, राइट? एग्रीगेटेड लेवल पे सम अगर मैंने यूज किया है तो ऑल द कंट्रीज का या वॉट एवर सेल्स का जो मेरा कॉलम है उसके बेसिस पे वो मुझे क्या करेगा, सम करके टोटल वैल्यू शो करेगा. सीज ऑल द डेटा एट वंस. Again, example for this is, let's say I'm having this quantity column over here in the table and I wanted to calculate total quantity. So I'll say मैं एक measure बनाऊंगा total quantity and aggregated function use करूंगा sum of the sales fact table के अंदर का quantity का column. So what it gives me, it gives me a total quantity 17. इसका क्या करेगा, sum करेगा वो and मुझे result provide करेगा. लेकिन ये मुझे दिखेगा क्या, कब दिखेगा? When and only I can use those measures in a visualization. Then and then only I can able to see the result for this total quantity measure. ये clear है? Again, also we see yesterday implicit measures and explicit measure, right? Let's say मेरे पास कोई numeric column है, I simply drag this numeric column in Power BI. Let's say I'm having over here in this Power BI desktop, and if I let's say let's say in the sales fact table. In the sales fact table, how we identify numeric column? We got the symbols, right, for the numeric columns. We have this order quantity, and beside this order quantity we see this kind of a symbols. It denotes this is a numeric column. So I'll simply drag this column and put into the value section. So what it gives me, sum of order quantity. Because of this is a numeric column, Power BI ने अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज अ न्यूमेरिक कॉलम. मैं इसका सम करके आपको शो करूंगा रिजल्ट. दिस इज माई सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी. बट आप यहाँ पे पावर बीआई को आपने बताया नहीं था कि मुझे सम चाहिए या मुझे मीन चाहिए, मैक्स चाहिए. पावर बीआई ने क्या किया, न्यूमेरिक कॉलम दिखा उसको, उसका डिफॉल्ट जो उसका बिहेवियर उसने है. लेट्स से मैं यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन को मैंने अगर किया तो देखो यहाँ पे क्या टिक मार्क है, सम. इफ आई टेक इट एज अ एवरेज, इट गिव्स मी एन एवरेज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी. सो डिफॉल्ट बिहेवियर जो भी एग्रीगेशन फंक्शंस है, उस एग्रीगेशन फंक्शंस को वो लेके अपने आप ही डिसाइड करेगा कि मुझे सम इसका दिखाना है, बिकॉज डिफॉल्ट माई सिलेक्शन इज सम.
एंड मैं न्यूमेरिक कॉलम हूँ तो इसका मैं क्या करूँगा, एक वैल्यूज मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा। बट दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, आपने जस्ट न्यूमेरिक कॉलम ड्रैग किया, पावर बीआई ने खुद डिसाइड किया कि आई वांट टू शो सम, और आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। बट दिस इज नॉट स्पेसिफाइड, आपने कोई एक्सप्रेशन कोई फंक्शन यूज करके पावर बीआई को ये एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है कि आई वांट सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, right? So this behavior, this numeric columns drag into the value sections and it gives you a value. This behavior is called as a implicit measures. This act as a implicit. And what explicit, you specially create one measure with the help of expression functions. Let's say मैंने total order quantity का measure बनाया, and let's say I say total order quantity sum of whatever the column I'm having, I wanted to aggregate, let's say order quantity का column, so sum of sales pack table के अंदर का order quantity का column, I create one measures and drag this measure into the canvas. So this measures, I can say this is an explicit measures. So that's what it discuss over here. What is implicit measures and what is explicit measures? Okay. Again, come to the aggregations. Aggregations is nothing but those are the aggregation functions we can use in a for the calculation purpose, right? Important aggregation functions. We mostly just, yes, Priya, बोलो. सर इट मीन्स जो भी कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल उसको ड्रैग करके जो भी वैल्यू आते हैं कैनवास पे उसको हम इम्प्लिसिट बोल सकते हैं। Yes, correct. Because you don't specify any kind of expressions explicitly. Explicitly means in the sense कि आप external उसको कोई expression लिख के बता नहीं रहे हो कि this particular column का मुझे क्या show करना है, aggregation show करना है या मुझे dividation show करना है, whatever. आप कुछ भी specify नहीं कर रहे हो, simply dragging numeric column into the value sections, it gives you some kind of aggregations. So this kind of a behavior we say this is an implicit measures. But ओके, when वन you मोर क्वेश्चन specify सर। it in, yeah, अगर हमने बोलो. कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाया एंड उसके वैल्यूज हम ड्रैग करके लेके आए तो उसको भी इम्प्लिसिट में हम कंसीडर करते हैं क्या? Yes, yes, correct. Even if you created a calculated column, still it is in a column, right? ओके Just the difference between a regular column and calculated column is you specify some expression to create that calculated column. After creating this calculated column, it considered as a column only in the table. So you drag this column into the, let's say, column ओके sections and it gives you some kind of aggregation, then this is implicit. ओके, थैंक यू सर। Okay. Yeah. Anyone, any kind of a doubt on this? We revise because DAX काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा कंसेप्चुअली हार्ड जाता है इनिशियल लेवल्स में, इसीलिए मैं थोड़ा इसको रिवाइज कर रहा हूँ व्हाट वी सॉ यस्टरडे एंड वी देन लिंक अप द थिंग्स कि जो जो हमने मेजर्स देखे हैं, जो जो फंक्शंस देखे हैं, हाउ कैन वी यूज दोज फंक्शंस, दोज मेजर्स इन आवर रिपोर्टिंग. ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ अ डाउट? क्लियर है यहाँ तक सबको? व्हाट इज दिस डिस्टिंक्ट काउंट? डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब क्या होता है? यूनिक काउंट। या यूनिक काउंट, राइट? लेट्स से मेरे पास किसी टेबल के अंदर कुछ सम वैल्यूज है, लेट्स से 1 1 2 3, मेरे पास 4 रोज है, 1 1 2 3. इफ आई एम टेकिंग अ डिस्टिंक्ट काउंट फॉर दिस कॉलम्स, व्हाट आई एम गेटिंग? 1 2 3, राइट? इट डजंट कंसिडर दैट डबल वन जो है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, उसको सिंगल वन वो कंसिडर करेगा. दैट्स व्हाट डिस्टिंक्ट काउंट गिव्स यू अ रिजल्ट. Okay, so come to the PPT. Explicit में मतलब, okay, so explicit in the sense कि let's say मैंने कोई भी कॉलम यहाँ पे ड्रैग किया and let's say I'm creating a measure over here, I'm selecting new measures and I specify in the expression कि I don't want a sum, I want an average for this order quantity. But this average also, if I do this sum of order quantity, let me show you. Let's say average order and I'll say average of मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैं
मैं फिजिकली फॉर्मूला को लिख रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाट आई वांट, एवरेज ऑफ लेट्स से सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का से ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम मैंने लिया. So this measure is physically created over here. And if I use those measures in the visualization, those measures called as explicit measures. And if I, let's say मैं again order quantity को drag कर रहा हूँ यहाँ पे, sorry, if I convert it into this one, it gives me 1.51. And now if I again in the canvas, I can drag this order quantity column into the value section, and instead of sum, I'll say average. Still it gives you a 1.5 only, 1.51. Both gives you same result, but explicitly we create our measures and then we got the result. So this is the best practice. We always do this way. We can't drag directly columns into the value sections and getting the results. We always create a measures and use those measures in the value sections. So we always use explicit measures. Understood? Okay. Then this is again same things, columns and measures. Basic unit of measures, column. Okay, fine. So now let's move to the next functions that we called as a calculate. Okay, now we understand that there is some function in the DAX, some kind of functions like aggregation functions होते हैं, उनको हम यूज करते हैं. लेट्स से मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का एक जो मेजर बनाया, लेट्स से आई विल जस्ट रीनेम दिस मेजर. लेट्स सी आई कैन क्रिएट वन in the calculation section. Let's say we have this revenue का measure. We have created this measures using iterator functions. Iterator functions सबको समझ में आया? What is iterator functions? Iterator functions accept two parameters. First one is the table, second one is the expression. आप जो टेबल स्पेसिफाई करते हो उस टेबल के अंदर you wanted to perform some kind of expressions. Expression in the sense it can be some aggregations, it can be some kind of a dividations or whatever. आपको जो लॉजिक क्रिएट करना है, आप जो लॉजिक लिखते हो यहाँ पे, जो रिजल्ट गेटिंग द रिजल्ट, दैट लॉजिक. सो व्हाट इट डज, iterator iterate that expressions for each row in the table, whatever the table you specify. हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिम प्राइस का कॉलम यूज किया था एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस विद द ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम के साथ. सो इसका जो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हर एक सेल जो है सेल्स फैक्ट टेबल का, हर एक रो जो है उस रो में वो क्या करेगा, ये रिजल्ट कैलकुलेट करेगा. ओके, रिजल्ट कैलकुलेट करेगा एंड देन गिव यू अ वैल्यू which this particular iterator function store in his memory. This will not going to showcase you ki what is the result for this, but it will be showcasing, it will be stored in its memory. Once all the rows are finished from this sales fact tables, iterations are going to finish, then वो क्या करेगा, आपने उसको किस में रैप किया है, अपने सम में रैप किया हुआ है. सो वट एवर द वैल्यूज यू गॉट फ्रॉम दिस मेमोरी, वो उसको क्या करेगा, सम करके अल्टीमेटली आपको एक फाइनल रिजल्ट देगा. दैट्स व्हाट दिस इटरेटर फंक्शन डू. Okay, and how we identify the iterator functions? Every iterator functions end with x. whatever the मेरे पास जो एग्रीगेशन फंक्शन है, सम है, मीन है, मैक्स है, काउंट है, so they those, if I wanted to iterations on it, I can use x, count x, mean x, max x. So that kind of iterations functions do. So let's say I'm having this revenue measures, and if I drag this in revenue measure in my canvas, it gives me some total revenue 34.10. Let's say I'll convert this into the table, and let's say what it's showcasing me. I'll just gives me a total value, and alongside with this I can say I'm having this territory का table जिसमें मेरे पास countries है. For example, I'll just drag this country का column, and alongside with this column I'll just put over here. Just okay. So what it gives me, just give me some increase the fonts. So what it gives me country wise sale. ऑस्ट्रेलिया का सेल कितना है, कनाडा का सेल कितना है, फ्रांस का कितना है. करेक्ट. नाउ माय रिक्वायरमेंट इज काइंड ऑफ कि मुझे
एक ऐसा मेजर चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन चाहिए जो मुझे ऑलवेज गिव कनाडा का सेल. I don't want to see other sale. I want to see always the Canada sale. So how we can put this filtration in a logic? अभी ये कनाडा का सेल पाने का दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन इन द सेंस कि मैं कैसे देख सकता हूँ. आइदर वे आई कैन सी दिस इन अ टेबल जिसमें कनाडा के सामने वाला रो मुझे क्या कर रहा है, कनाडा की सेल की वैल्यू दे रहा है. ओके, आइदर वे आई कैन पुट अ स्लाइसर ओवर हियर कंट्री का. लेट्स से मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन में गया. Okay, and I'll say this my slicers visuals. Again we are going to see this all the visualization separately, right? Each visualizations ki how this behave, what kind of a result it give. I'll just give you a concept behind this and then we'll see this visualization type in the next lectures. Okay, so let's say in the slicers visuals I drag this country column. It gives me list of countries. If I select any country, ultimately क्या होगा, मेरे सारे जो visualization है वो filter होंगे. That's what I'm talking about कि आप जो मेजर से आपने ये क्रिएट किया हुआ है, इट क्या करेंगे, आपको डायनेमिकली फिल्टर्स करके देंगे वैल्यू. सो आई विल सेलेक्ट ऑस्ट्रेलिया, दिस पर्टिकुलर टेबल्स फिल्टर्स एंड शो मी ओनली ऑस्ट्रेलिया. अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ये फिल्ट्रेशंस क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेरिटरी टेबल एंड अवर सेल्स फैक्ट टेबल. बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ओनली दिस फिल्ट्रेशंस कैन बी हैपनिंग. अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है देन इट विल बी नॉट हैपनिंग. Because of this relationship and the direction it happening, it transfer these filters from Australia to the my sales fact table and filter the country over there and gives me a result. Okay, so now again this is the concept for filter context, row context. We will going to see in a couple of minutes, but my point is if we select any country over here in the sections, it gives me that particular country. But what now, either I can select Australia over here, it gives me Australia, but I'm interested in Canada, right? मुझे always जो मेजर है वो मुझे कनाडा की वैल्यू शो करनी चाहिए उसने. ठीक है, so how can we apply this filtrations in our logic? We use calculate function for this. Okay, so even every जो मेरा particular expressions या measures होता है, it wrap inside the calculate only. यहाँ पे कैलकुलेट दिख नहीं रहा है, बट वो इनविजिबल मोड पे है. यहाँ पे इनविजिबल मोड इन द सेंस कि वो बैकएंड में कैलकुलेट ही कर रहा है. बट इफ यू वांटेड टू स्पेसिफाई सम फिल्टर्स ऑन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट फंक्शन यूज कर सकते हो. कैसे? लेट्स से इन द कैलकुलेशंस आई कैन क्रिएट अ न्यू मेजर in order to calculate the sale for Canada. Okay, now again explicit measure बनाने का बेनिफिट क्या है वो अभी हम देखेंगे. लेट्स से मैं यहाँ पे इस मेजर को नाम दे रहा हूँ कि कैनेडा सेल इक्वल टू, I'll say calculate is my function. I'll say calculate. What calculate? Accept the parameter, it accept expressions and whatever filter conditions you want to apply. So inside the calculate, I can say calculate. What calculate? Total revenue calculate. We already create the revenues measure. So I'll simply say calculate this revenue. Calculate this revenue. On which filtrations? I want filtration for country. Let's say I'll search for country over here. You see this column territories dim country. We simply say territories dim country equal to double inverted comma, because country की जो values है वो क्या है, string है. So we need to pass double inverted commas, and inside this double inverted comma I say Canada. So what this measure is doing, what this measure is calculating, it calculate the revenue. Either way, I'll just, for example, remove this part. For an example, I'll just remove this, Control X, let's say, and I'll just simply calculate this only. What it calculating revenue. Revenue का measure क्या है? Revenue का measure is this one. So instead of using again this expression, ये लिखने से अच्छा, what can I can say? Calculate revenue. If I drag this measure into the particular column, let's say I'll just remove these filtrations and I'll say now this measure alongside, just select this table and I'll just Canada sale में यहाँ पे revenue के side में डाल रहा हूँ. See, those are going to same result. So आपने अगर explicit measure create नहीं किया होता, so you can't able to create this measure calculate वाला, because you can't use implicit directly. columns तो use नहीं कर सकते आप यहाँ पे.
सो आप यहाँ पे क्या किया, इन शॉर्ट आपने एक अलग मेजर का रेफरेंस लिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अनदर रिजल्ट. सो दैट्स व्हाई दिस एक्सप्लिसिट मेजर्स आर इंपॉर्टेंट. हम एक्सप्लिसिट मेजर्स बना के स्टोर करके रख सकते हैं, एंड देन कैन वी यूज दोज एक्सप्लिसिट मेजर फॉर आवर फर्दर कैलकुलेशंस. सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट के अंदर रेवेन्यू को कैलकुलेट किया. अगेन इन दिस रेवेन्यू, ये सम एक्स जो है, इफ आई रैप दिस इनसाइड द कैलकुलेट, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट लिखा एंड आई जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट, स्टिल इट इज गिविंग मी अ सेम रिजल्ट. सो कैलकुलेट लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट एनी फिल्ट्रेशंस. तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं लिखूंगा भी तो सेम रिजल्ट आएगा. इट डजेंट मैटर. सो कैनेडा सेल्स के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से कैलकुलेट दिस रेवेन्यू, बट बेस्ड अपॉन कंडीशन आई से कॉमा. दिस इज लेट्स से एक्सप्रेशन के बाद कॉमा है. Once you do the comma, it asks for the, now you see this blue, it is highlighted in the blue color because you need to pass now filter condition. What filter condition is we want to pass? We want to calculate the sale for the country. Country is equal to Canada. So simply I pass country is equal to Canada, but inside the double inverted comma. Why? Because Canada is in a string value. So once I enter it, let's see what is happening. Focus on this Canada sale. You see, this Canada sale is now showcasing only the value for the Canada. Even if I apply the Australia filter, let's say I'll applying the Australia filter, still this Canada sale ka measure gives you value for Canada, not for the Australia, because you specifically mention in the Canada sales ke measure mein, I want this revenue for Canada only. That's how we apply filtrations on measures. That's why we put filtrations in our logics using calculate functions. So this is the most important function in Power BI, calculate functions. It gives you ability to apply filters. Okay, so sometimes interviewer may ask about what is calculate functions, why we use calculate functions. So why we use calculate functions? If we need to apply some kind of a filtrations in our logics, then in that case we use calculate functions. ये क्लियर है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? एनीथिंग, any single doubt on this, why we use calculate functions and how these two measures gives you a separate result? One is for the revenue, which gives you a whatever filtrations you apply based upon that revenue gives you a result. But for this Canada sale, it gives you a value for only whatever filtrations you apply over here. Might be I'm applying another filters, or this is not specific to one or two filters. If you let's say Canada के बाद I can say again drop down मैंने ये comma दिया, you see this filter too, and you see this dot dot over here, it means unlimited filters you can apply over here. It doesn't specific to one or two filters. You can apply for country filter. Let's say you wanted to see only for 2015 data in that particular logic, so you can simply apply कि again date year जो है वो year कहाँ से आ रहा है, in the date column. So you can take the reference from this date year column is equal to 2015, राइट. लेट्स से हमारा जो डेट का कॉलम है, राइट, कैलेंडर डिम डेट, दिस इज आवर डेट का डेट. I wanted to pick an year. Already we don't have a year column in our calendar table. We can create this one. I'll quickly go into the transform tables and I just create some columns in our calendar dim table which we initially created, right? I'll go to this calendar table where it is. This is right. This only having a one column right now, no any applied steps. I simply adding columns over here. This you know, right? How we can add the column in a Power Query. Simply I'll go to the select the columns. I'll say add columns to the date and passing the year. Okay, and then again I'll select the date column. I'll go to the date. I'll say give me a name of a month. Again date. I'll say give me
quarter of a year. In date, I'll say give me month number. Okay, again go to this and say give me start of the month. The different columns I'm having. Okay, I'll simply go to the back and say close and apply. समझ में आ रहा है सबको? Online student, why we use calculate functions? In order to apply filters, now we have a calendar dim tables and we have a couple of columns inside it. We'll simply say calendar dim ka year I wanted to it as a, let's say 2015. Now I don't need to put this in a double inverted comma because this is a integer, right? Data types, you are familiar with data types, right? You already learned SQL, so data types are clear to you. So integers we never wrap in a double quoted, but string we can wrap in a double quote. So again, this particular value is for the 2015. Okay, clear है यहाँ तक? Calculate function. Sir, Yes. calculate is used only for filters. Yeah, mostly calculate is only used for the filtrations. But Then there is a why chances of yeah filtered X is used? filter access. Yes, filter is that keyword. Some cases you need to specify some conditions. Let's say so this filter function is a separate functions, gives you a kind of a tabular structure. So in that case I specifically mention filter then table name and which columns I need to apply the filtration. So it depend upon the conditions. If your logic is if your this particular model is pretty much clear, इसमें कोई भी complexity नहीं है, then there is no need of these filter functions. You simply apply the filtrations based upon the columns, but there is a complexity in your filter or your model. Might be it having some both direction relationships, then you specifically mention the filter functions and apply the filtration. So let's say यहाँ पे calculate functions का जो even मेरा this particular measure है, we can apply the filter functions over here also. कैसे apply करेंगे? Let's say I simply say calculate. If I wanted to comment this particular line, how can we do this? We simply double hyphen in order to comment this particular line. और मेरा कोड बहुत बड़ा है, let's say, so I can say मैं ऐसे कमेंट कर सकता हूँ, मैं फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार, यहाँ से मेरी लाइन शुरू होगी कमेंट करने के लिए, जहाँ एंड होगा मैं उसके एंड में ऐसे स्टार एंड दिस. सो व्हाट इट मीन्स, मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे एंड हो रही है. मेरा कोड बड़ा है तो आई जस्ट पुट इन द एट द एंड. अगर मैंने ये पुट नहीं किया तो एवरीथिंग इनसाइड दिस इज विल बी कमेंटेड. ओके, सो आई जस्ट से एंटर. एंटर कैसे करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर. आई से कैलकुलेट, my expression is the revenue, and in the filter condition I say filter. Again filter will be passed based upon this tables and expressions, right? So filter मुझे किस टेबल पे अप्लाई करना है? Country, territory, we have territory, right? Territory name, and then based upon that filter, based upon the tables you specify, it shows you a columns name. So I'll say country, territory name का country column,
is equal to, let's say, Canada. Okay, now it gives, ये इसने देखो यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज में भी क्या दिया, ब्लैंक दिया, राइट. दिस, अगर मैं इस टेबल को यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ, नाउ सी द डिफरेंस. जब मैंने फिल्टर फंक्शन यूज किया, सो उसने स्पेसिफिकली क्या किया, अदर की जो वैल्यूज थी इनिशियली व्हेन वी यूज कैलकुलेट फंक्शन, उसने हर एक सेल के लिए मुझे क्या दी थी, वैल्यू प्रोवाइड की थी यहाँ, करेक्ट. बट व्हेन आई स्पेसिफिकली यूज फिल्टर फंक्शंस, तो उसने क्या किया, स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इफ एंड इफ ओनली अगर कनाडा की वैल्यू वहां पे है तो मैं उसी सेल के लिए वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, नॉट फॉर अदर्स. समटाइम्स आप जब आप रिपोर्ट्स डेवलप करते हो, तो जो आपके क्लाइंट है, जैसे आपको पर्टिकुलर वैल्यू ही यहाँ पे शो करनी है, नॉट फॉर अदर्स. जैसे फर्स्ट केस में, कनाडा सेल्स के केस में, दिस पर्टिकुलर मेजर के केस में, मुझे इसी सिंगल रो में सेम वैल्यू मिल रही थी, बट विजुअली वो देखने के लिए, लेट्स से, मुझे ठीक नहीं लगता. आई डोंट वांट टू सी ओनली द सिंगल वैल्यू. So in that case, we can use these filter functions which specifically tell that you need to go to this territory name, apply this Canada filter, and show me value for the revenue only, not for the others. Understood? समझ में आ रहा है? If I drag this in a, let's say, in a particular single value cell like this card which will showcase you always. Now if I drag this and specifically apply the filtration, see, for Canada only filtrations, it gives you a value. In short, explicit filtrations, abhi, this is the again a new concept for you. Whatever filtrations I'm applying over here based upon this filtration, we call this as a explicit filter. मतलब मैं बाहर से apply कर रहा हूँ filters, मैं choose कर रहा हूँ कि what kind of a data I wanted to see. मुझे ऑस्ट्रेलिया का देखना है, कनाडा का देखना है, मैं इस filtration की criteria से choose कर रहा हूँ. सो मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ मेरे रिपोर्ट्स के ऊपर. सो दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशन. ओके, एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट, इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशंस. व्हाट इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशन इज, जब मैंने ये विजुअलाइजेशन बनाया, आई जस्ट क्रिएट दिस विजुअलाइजेशंस एंड आई अप्लाई कंट्री कॉलम एंड रेवेन्यू कॉलम ओवर हियर. इसने मुझे क्या कर दिया, वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सेल कितना है, कनाडा के लिए सेल कितना है. ये आपने पावर बीआई को बताया नहीं था कि मुझे वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ. ये इम्प्लिसिटली उसने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने खुद से फिल्ट्रेशन अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है. सो ये फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है, ये इम्प्लिसिटली हो रहा है, ये इनसाइड द लॉजिक, इनसाइड योर इंजन हो रहा है. सो दैट्स वाई we have a two filtrations type, implicit filtrations and explicit filtrations. So basically why this filter function is doing what it's doing, it removes this explicit, it उसको बोलेंगे हम कि it obeys the explicit filtrations. आप कनाडा के लिए filtrations अप्लाई कर रहे हो, then and then only it gives you a result. For other filtrations it gives you a blank result. But for our previous measure, the scenario is kind of a, you select any filtrations, it gives you a same value. समझ में आ रहा है? सो फिल्टर फंक्शंस क्या कर रहा है, आपका एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशंस को ओबे कर रहा है. whatever filtrations you apply, it showcase the value based upon this. But in the filter function you specifically mention that I want to see only value for Canada, not for other countries. So whenever you apply the filtrations for other countries, it gives you a blank value, and whenever you only filter for the Canada, at that point only it gives you a value. Okay, understood? So mostly in case of KPIs, we don't use these filter functions. We always use these functions, calculate functions. Why? Because we don't want to see that our clients or our reports showcasing a blank values. Either the selection is there, it always needs to show the same value for me. So it doesn't obey those filtrations.
It gives me a constant value. समझ में आ रहा है ये? And again, filter functions, inside these filter functions, whatever tables you provide, based upon that table only it showcase you the values over here. उस टेबल के अंदर की कॉलम ही आपको शो करेगा. इफ आई पास द सेल्स फैक्ट टेबल, देन मुझे वहां पे कंट्री या टेरिटरी का की पास करना पड़ता, बिकॉज कंट्री का कॉलम सेल्स फैक्ट के टेबल में नहीं है. अंडरस्टूड हो रहा है ये? सर इसका Sometimes. दिस रीजन इज अ टेबल फंक्शन. सॉरी, इसका रीजन क्या है? कैलकुलेट में सब में आता है और फिल्टर में जस्ट एक में आता है. because filter is a tabular function. Tabular function means, let's say um, say Canada table. If I go to this table now, you can able to see this is a table created. Filter function is a table function. Calculate is not a table function. So whenever you do filter functions, what it means is टेरिटरी टेबल के अंदर वो क्या कर रहा है, एक ओनली सिंगल रो क्रिएट कर रहा है, नॉट अदर रोज. तो उसको बाकी की जो वैल्यूज है, जैसे कंट्री के कॉलम में मेरे पास अभी वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, कनाडा. अंडरस्टूड हो रहा है? बट व्हेन वी यूज कैलकुलेट फंक्शंस, इन दैट केस इट इज रेफरेंसिंग विच टेबल, आवर टेरिटरी टेबल. ये टेरिटरी टेबल रेफरेंस कर रहा है. इसमें कंट्री की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, कनाडा है, फ्रांस, ऑल द वैल्यूज आर अवेलेबल विथ मी. बट व्हेन आई यूज फिल्टर फंक्शन, सो बैक एंड में वो क्या कर रहा है, इट क्रिएटिंग दिस टेबल, स्मॉल टेबल, एंड इट रेफर ओनली कंट्री की वैल्यू फ्रॉम दिस कॉलम, कनाडा. यहाँ पे उसको बाकी की वैल्यूज नहीं मिल रही है. दैट्स वाई इट गिव्स यू ओनली वैल्यू फॉर कनाडा, नॉट फॉर अदर कंट्री. जिनका डाउट था उनको थोड़ा समझ में आ रहा है ये कि कैसे रिलेट हो रहा है ये चीज़ें. इनिशियली व्हेन वी यूज कैलकुलेट फंक्शंस, उस टाइम पे हमने टेरिटरी डिम का कंट्री का कॉलम था उसका रेफरेंस लिया था इन ऑर्डर टू अप्लाई द फिल्ट्रेशंस. बट व्हेन वी टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस कंट्री, यहाँ पे उसको कंट्री के कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आर देयर. सो दैट्स वाई फॉर कनाडा के लिए उसने फिल्ट्रेशंस अप्लाई किया, यहाँ से कनाडा की वैल्यू अप्लाई करके फिल्ट्रेशंस अप्लाई किया, बट स्टिल इट these columns contain other value also. So वो क्या कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स के सामने भी मुझे कनाडा की वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहा था. बट व्हेन आई स्पेशली मेंशन कि फिल्टर द कैलकुलेट दिस टेरिटरी डिम, अप्लाई द कनाडा फिल्टर, देन उसने क्या किया, बैकएंड में ये टेबल क्रिएट कर दिया जिसमें उसको कंट्री के कॉलम में कनाडा की वैल्यू ही मिल रही, सिंगल वैल्यू. सो इट अप्लाइंग सिंगल दिस वैल्यू टू माई रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू का जो मेजर है उसमें उसको बस सिंगल वैल्यू इनपुट आ रही है. सो इट क्या कर रहा है, वो सिर्फ कनाडा का ही सेल मुझे शो कर रहा है, अदर का जो कंट्री का सामने मुझे ब्लैंक वैल्यूज प्रोवाइड करके दे रहा है इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशंस. दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग बैक एंड. व्हेन यू यूज फिल्टर फंक्शंस, इट गिव्स यू फिल्ट्रेशन. सो वो हम बोलते हैं ना कि स्पेसिफिकली वो उसी फिल्ट्रेशन के ऊपर काम करेगा, अदर फिल्ट्रेशन के ऊपर वो ब्लैंक वैल्यू प्रोवाइड करेगा. So whenever you using DAX, you need to choose functions wisely according to your need. आपको विजुअलाइजेशन में कैसे देखना है, कैसे लॉजिक बिल्ड करना है, बेस्ड अपॉन दैट यू चूज द योर फंक्शंस. Either it is a filter functions or it be a directly calculate function. Still,
instead of for using this filter function also we need to use calculate itself, right? हमें calculate use करना ही पड़ा. So why need to use this kind of a function if we're getting the result for this only? Initial level में calculate is fine that you apply the filtrations for any country and getting the result. But if you wanted to see filtrations like this only, कि मुझे बाकी की countries का sale नहीं देखना, I don't want it. I wanted to see only Canada sale, then go for this filter function. So it is totally depend upon how you wanted to see the result over here in this table. अभी समझ में आया थोड़ा? Yes, Sometimes, of course. sometimes filter is used with all function. Na? Yeah, we are going to see these functions all select, all accept. But my question is, do you understand this calculate filter? Yes. Why we use this calculate function? ये understand हुआ? No, like for this expression, what if we use filter with all? See, all function is kind of to remove all the filtrations. So let's say for example, now टॉपिक निकला ही है तो let's say मैं आपको बताता हूँ कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि I filter this Australia, it gives me value for the Australia, right? If I wrap these functions or I use this in a all, so I can say I'll just remove these filtrations. I don't want these filtrations in terms of alls. Or I can say comment करता हूँ मैं इसको and say calculate revenue comma all. This is my functions all. If I select alls, what it's showing? Return all the rows in the tables or the values in the columns, ignoring any filter that might have been applied. इसका क्या मतलब हुआ? Ignoring any filter that might have applied. जैसे हमने just थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया था कि what is explicit filtering and what is implicit filtering. So वो इन दोनों फिल्टर्स को इग्नोर करेगा इन द सेंस जब ये रेवेन्यू का मेजर मैं यहाँ पे यूज करूंगा सभी रोज के लिए वैल्यू मुझे ये टोटल वैल्यू देगा. कैसे देगा? लेट्स से ऑल एक्सेप्ट टेबल नेम और कॉलम नेम. सो यहाँ पे मैं ऑल के ऊपर लेट्स से मैं फिल्टर पास किया, लेट्स से सेल्स फैक्ट का टेबल मैंने आई जस्ट वांटेड टू रिमूव एनी फिल्ट्रेशंस अप्लाई ऑन दिस सेल्स फैक्ट टेबल. मुझे कोई भी फिल्ट्रेशंस नहीं चाहिए. इफ आई सी आई इंटर दिस, you can able to see this Canada sale now gives me a total value 34100. So it remove any kind of implicit function, implicit filtrations. ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसे रेवेन्यू का जो मेजर था वो इंटरनली मुझे फिल्टर करके दे रहा था ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू कितनी है, कनाडा की वैल्यू कितनी है. And explicitly if I select any filtration from outside, still only it gives me ऑस्ट्रेलिया की रेवेन्यू कितनी है, but this Canada sale now gives me a total value, not for the Canada की total कितनी है. That's what this all function do. All functions remove all the context, filter context, or sorry, filtrations, implicit filtrations or explicit filtrations. Whatever we apply inside or outside on this calculations, it removes all. What is the use case for this? I wanted to calculate, let's say percentage for this, कि ऑस्ट्रेलिया का टोटल सेल में कितना परसेंटेज है. ये मेरा जो सेल है 34100 ये मेरा टोटल सेल है, राइट, सभी कंट्रीज का मिला के. मुझे अगर देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का उसमें कितना परसेंटेज है, कनाडा का कितना परसेंटेज है. सो आई वांट दिस काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन. तभी तो मैं डिवाइडेशन कर पाऊंगा ना कि दिस 98245 डिवाइड बाय 341, दिस रेवेन्यू का सेल, ऑस्ट्रेलिया का सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल. दे कैन एबल टू कैलकुलेट दिस परसेंटेज ओवर हियर. Correct? So let's say I can say over here, I can create a new measure, new calculations over here, and I'll say, let's say percentage equal to, simply I say divide. Divide is the functions that we use for the dividations in Power BI. Simply you can also use slash itself, जैसे हम normal case में Excel में use करते हैं कि this table
divide by slash by this table. But always specifically use divide functions. Why? Because divide functions handle the zero. Let's say sometimes आप किसी particular value को zero से divide करते हो. So what it means, इसका कोई value नहीं होता, right? Indefinite या infinite values हमें मिलता है. So that kind of a scenario regular slash not handle. सो दिस डिवाइड फंक्शंस हैंडल. यहाँ पे आप एक अल्टरनेट रिजल्ट पुट कर सकते हो कि इन केस अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है कैलकुलेशन से, तो आप वहाँ पे जीरो पुट करो या ब्लैंक पुट करो. ओके, सो न्यूमरेटर इस केस में क्या होगा, हमारा रेवेन्यू का जो मेरा कॉलम जो मेजर है वो दिस रेवेन्यू मेजर विच गिव्स मी अ वैल्यू फॉर ईच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस इंडिविजुअली दे रहा है. एंड आई विल सिंपली से कॉमा डिनोमिनेटर में मेरा क्या रहेगा, दिस कनाडा सेल नाउ विच गिव्स मी अ टोटल वैल्यू. If I enter it and I'll drag this percentage column over here, we can see percentage. Okay, so let's say I wanted to format these measures. So simply I select the measures. यहाँ पे देखो कुछ एक format tool यहाँ पे open हो रहा है. When you select any kind of a measure tools आपको दिखता है and यहाँ पे आप उसके format पे काम कर सकते हो. आपको percentage में देखना है या आपके decimal places में आपको कुछ कम ज़्यादा करना है. So you can do this over here. So simply I click on this percentage. Now you can able to see the percentage over here for each country. ऑस्ट्रेलिया का टोटल सेल में कितना परसेंटेज है, 28.81%. समझ में आ रहा है ये? ऑनलाइन स्टूडेंट, what is the use case for this all, what all is doing? इंटरव्यूअर आस्क, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड ऑल सेलेक्टेड. ऑल सेलेक्टेड इज अगेन अनदर फंक्शन, बट नॉर्मली क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड ऑल सेलेक्टेड, या व्हाट इज ऑल फंक्शन डू, व्हाट इज द यूज केस फॉर दिस ऑल फंक्शन. सो यू कैन एक्सप्लेन दिस सिनारियो. ऑल फंक्शन क्या करता है, ऑल रिमूव इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशंस. ओके, एंड व्हाट इज द यूज केस. सो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. लेट्स से आई एम हैविंग अ टोटल रेवेन्यू मेजर which gives me revenue for all the country, and now I wanted to calculate what is the percentage for each country on the total revenue, overall total revenue. Okay, so how we can calculate this, we can use all functions. this Canada sale का जो मेजर हमने बनाया, आप उसको ओवरऑल सेल का मेजर कर सकते हैं. we can create one measure overall sale. Okay, and we can mention there कि we want to calculate total revenue, but how we calculate, we just remove all the filtrations which is coming from outside on the sales fact table, because total revenue का जो measure है वो belong कहाँ से करता है, उसमें कौन सी columns use किए हुए हैं. we use all the columns inside the sales fact tables. so हम यहाँ पे specially mention क्या कर रहे हैं, when we using all over here, we say revenue को तो calculate करो, बट सेल्स फैक्ट टेबल के ऊपर वट एवर फिल्ट्रेशंस कमिंग आउटसाइड, एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशंस या इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशंस कहाँ से आएंगे, थ्रू दिस डायरेक्शन, थ्रू दिस रिलेशनशिप्स दैट वी क्रिएटेड, उसके थ्रू इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशंस आएंगे. ओके, सो वो फिल्ट्रेशंस को तुम रिमूव करो, उनको कंसिडरेशन में मत लो, एंड गिव्स मी अ टोटल वैल्यू. दैट्स व्हाई दिस गिव्स मी अ टोटल वैल्यू, ओवरऑल टोटल सेल कितना है मेरा. And now we can use divide functions, revenue divided by overall revenue, which gives me a percentage for this individual country on the total sale, or total revenue, overall revenue. आया समझ में ये? ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes. किसी को कुछ डाउट है इसमें? I'm again asking for the doubts, because अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा टिपिकल है ये डैक्स ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्डली तुमको समझ में आएगा. इट रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट. ऑल फंक्शन का समझ में आया कि हाउ दिस ऑल फंक्शंस डू. अगेन ऑल फंक्शंस कैन बी यूज एज अ कॉलम रेफरेंस आल्सो. कॉलम रेफरेंस इन द सेंस कि जैसे कनाडा सेल्स के इस पर्टिकुलर मेजर में मैंने यहाँ पे टेबल को पुट किया. इफ आई वांटेड टू स्पेसिफिकली मेंशन सम कॉलम इटसेल्फ, नॉट तुम फिल्ट्रेशंस रिमूव करो, बट नॉट फ्रॉम द ऑल द
इस टेबल के ऊपर के सारे फिल्ट्रेशन मत रिमूव करो. माइट बी इट फिल्ट्रेशंस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कि तुम लेट्स से कंट्री का जो कॉलम है मेरा टेरिटरी डिम के अंदर, उसका जो कंट्री का कॉलम है उसके ऊपर के तुम फिल्ट्रेशंस रिमूव करो. सो अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक सेल्स स्लाइसर्स क्रिएट कर रहा हूँ. जस्ट रिमूव दिस वन. I'll just copy this visual. Control C, Control V. We can copy paste the visuals over here in the canvas. Simply selecting the visuals. And instead of country, what I want is I want let's say calendar dim के अंदर का year का column. Just drag it over here. It gives me what it gives me. It gives me a, whatever the values available for the year. If I select any particular country year, it what it giving me, it filters that particular data for the 2015 and gives me the result. Right? That is what is happening right now. So now what I can do is I can say I wanted to remove filtrations from a specific column. Okay, using all itself we can do. Let's try this. मैं यहाँ पे inside this sales fact table I'll say all calendar dim का जो मेरा टेबल है उसके अंदर का ईयर का कॉलम. ठीक है, मैं यहाँ पे ईयर का कॉलम पास कर रहा हूँ. कहाँ से? कैलेंडर डिम के अंदर का ईयर का कॉलम. ऐसे एंटर. नाउ सी दिस परसेंटेज विल बी शोइंग मी द 100%. If I select any kind of a filtrations, this total gives me is what it gives me. It gives me exact similar to this. Why it is giving me similar to this? Now there is no control on this total revenue because we applying the filtration on this particular year का कॉलम. कहाँ से? कैलेंडर डिम के अंदर से. इस फिल्ट्रेशन का और इस कंट्री का और रेवेन्यू का कोई संबंध नहीं है. दैट्स वाई कनाडा का सेल कैलकुलेट हो रहा है. विजुअलाइजेशंस में फिल्ट्रेशंस किस कॉलम से आ रहा है? टेरिटरी डिम का कंट्री कॉलम, नॉट फ्रॉम द कैलेंडर यूजिंग DAX. Sorry, calendar using DAX we use, right? I think we need to use calendar dim here, not using DAX because there is no relationship between this. Calendar dim का year. Okay, so now again I'll select some values over here. You see, जब मैं वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वैल्यूज के हिसाब से फिल्ट्रेशंस काम कर रहा है. बट इफ आई सेलेक्ट दिस कैलेंडर टेबल, मैंने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं की, ये gives me a same result for this. ओके, सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि कैलेंडर डिम का जो मेरा ईयर का कॉलम है, इस ईयर के कॉलम के ऊपर का फिल्ट्रेशंस वो रिमूव नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज वी डोंट यूज दिस कॉलम ओवर हियर इन दिस विजुअलाइजेशन. ये थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है, इतना आपको जल्दी अडाप्ट नहीं होगा. एग्जांपल आई जस्ट रिमूव दिस एंड आई एम यूजिंग कैलेंडर डिम का ईयर ओवर हियर. Okay, so I don't want a sum of a year. I'll just say don't summarize it. It gives me the values. Let's say 15. Now you can see even in this Canada sale we apply this filtrations की कैलेंडर डिम का जो मेरा ईयर है उसके ऊपर का जो फिल्ट्रेशन है. यू सी, मैंने यहाँ पे ईयर का जो कॉलम है, ईयर के कॉलम में मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया. दिस कैनेडा सेल गिव्स मी ओवरऑल रेवेन्यू. मैंने यहाँ पे अगर 2015 भी सेलेक्ट किया, स्टिल इट इज गिविंग मी ओवरऑल रेवेन्यू. इसका मतलब हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, वट एवर फिल्ट्रेशंस कमिंग फ्रॉम दिस कैलेंडर डिम ईयर उनको रिमूव कर रहा है, वो कंसिडर नहीं कर रहा है इसको.
some case, some scenarios, you wanted to remove some filtration from some columns. So in that case, you can use all function, because all function accept table name और column name, both. आप टेबल नेम को भी यूज कर सकते हो और कॉलम नेम को भी यूज कर सकते हो. दैट्स व्हाट दिस ऑल फंक्शन डू. इवन इफ यू ट्राइंग टू पुट इंटेलिजेंस, आपको क्या बताता है, लेट्स से आई से ऑल, यू सी दिस टेबल नेम और कॉलम नेम, और टेबल का नाम देन कॉलम का नाम. सो ऑल फंक्शन एक्सेप्ट टेबल नेम और कॉलम नेम बोथ. ओके, देयर इज सम अनदर फंक्शंस. जैसे ऑल फंक्शंस का मेन डिफरेंस क्या है, it removes implicit filtrations and it removes explicit filtrations, right? So there is one more function called all selected. What it is doing, it remove the explicit filtrations and respect the implicit filtrations. So how, let's see. I create one more major over here. Let's say for the time being, I'm just renaming this Canada sale as a sales or revenue using all, for example, right? Revenue using all, and inside this I'll say all my sales or all my country it is, sorry, territory dim. So I'm putting the filtration, so I just wanted to remove the filtration from this territory dim. इस particular table के अंदर से जितने भी filtrations आ रहे हैं, I just wanted to remove it. Okay. Now see, we have these two different visual, right? First visual क्या हमें result दे रहा है, this revenue using all जो है, यहाँ पे मैंने country का एक column यूज किया हुआ है, करेक्ट. यहाँ पे जो रेवेन्यू यूजिंग ऑल है, ये मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, 341 टोटल ओवरऑल वैल्यू दे रहा है. बिकॉज व्हाट आवर मेजर, हमने क्या यूज किया है कि रेवेन्यू का कैलकुलेशन तो करो, लेकिन टेरिटरी डिम के अंदर से अगर कोई फिल्ट्रेशंस आ रहा है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशन, उसको तुम रिमूव करो. फॉर दिस केस यहाँ पे ये जो कंट्री का कॉलम हमने विजुअलाइजेशन में यूज किया है, इट इज कमिंग फ्रॉम टेरिटरी डिम. इसीलिए वो क्या कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मुझे ओवरऑल सेल दिखा है. बट सेम फॉर दिस अदर विजुअल, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंट्री का कॉलम नहीं है, मेरे पास यहाँ पे कहाँ ईयर का कॉलम है. पर दिस केस रेवेन्यू यूजिंग ऑल, देखो मुझे क्या दिखा रहा है, सेम वैल्यू शो कर रहा है. अंडरस्टूड हो रहा है? सेम वैल्यू, रेवेन्यू की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे है, सेम वैल्यू वो रेवेन्यू यूजिंग ऑल में भी मुझे दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशन अप्लाई नहीं हो रहा है. नाउ इफ आई अप्लाइंग सम फिल्ट्रेशन फ्रॉम ओवर हियर ऑस्ट्रेलिया, सी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इट गिव्स मी द सेम वैल्यूज. सो इन शॉर्ट, वो क्या कर रहा है, इट अप्लाइज, इट रिमूव द फिल्ट्रेशंस फ्रॉम एक्सप्लिसिटली कंट्री का जो मेरा बाहर से, दिस इज माय स्लाइसर, राइट, दिस इज माय एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशन दैट आई एम अप्लाइंग ऑन दिस विजुअल. ये एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशन है एंड ये इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशन है. सो कंट्री का कॉलम मैंने रेवेन्यू यूजिंग ऑल में रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है. सो आई एम सेइंग दैट इस पर्टिकुलर टेबल्स के जितने भी कॉलम्स है, या दिस पर्टिकुलर टेबल से जितना भी फिल्ट्रेशन आ रहा है, उनको तुम रिमूव करो. सो दैट्स वाई इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशंस एंड इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशंस, मेरा रेवेन्यू का जो या वट एवर कंट्री का जो कॉलम है, इट गिव्स मी अ टोटल वैल्यू. इट रिमूव द फिल्ट्रेशंस फ्रॉम बोथ. So now let's use another measure. Let's create another measure using all selected and say how this happening. So I'm saying over here, let's say revenue using all selected. Revenue using all selected. Just a minute. Hello? Hello?
revenue using all selected, right? So we'll say calculate. What I need to calculate? I need to calculate my revenue. In this time, I'm using all selected. What is it giving? Returns all the rows in a table or all the values in a column, ignoring any filter that might have been applied inside the query, but keeping the filter that came from outside. इसका मतलब all selected मेरा क्या करेगा? All selected respect the implicit filtrations and it remove the explicit filtrations. Implicit filtration means let's say I am applying some filtrations on this United States के कॉलम के ऊपर मैंने अगर कोई filtrations अप्लाई किया हुआ है तो उसको वो रिस्पेक्ट करेगा, बट यूनाइटेड स्टेट या कंट्री का जो मेरा स्लाइसर है उससे जो फिल्ट्रेशन जा रहा है उसको वो रिमूव करेगा. कैसे? लेट्स से ऑल सेलेक्टेड के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया फॉर एग्जांपल माय टेरिटरी डिम and I'll say column is my टेरिटरी डिम का कंट्री का कॉलम. ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखा. Sorry, I need to pass only the column name, not the table name. I simply say all selected, and inside all selected what I am saying is territory dim का country का column. इसका मतलब है कि whatever the filtrations coming inside, you obey that, but remove the filtrations which is coming from outside. In the same column, let's say in this particular column, for the time being, let's say I'm using this percentage for now, and I'll just add this revenue using all selected over here. Okay, now what you are seeing, आप देखोगे तो ये दोनों वैल्यू अभी के लिए सेम है. What all selected is do? All selected remove this implicit filtrations, right? See, it remove these implicit filtrations but respect the filtrations coming outside. जब मैंने कोई भी filtration outside से apply नहीं किया है country के column के ऊपर, then it gives me a same result like all, because it remove this implicit filtration. ऑस्ट्रेलिया कनाडा का filtration जो visualization के अंदर आ रहा है उसका filtrations उसने remove कर दिया. That's what this function is doing. But if I apply this filtration from this Australia, now this time what is happening? This time this revenue using all still gives me a total overall revenue. But this revenue using all selected ये क्या मुझे कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया का ही सेल दे रहा है. It obeys this filtration. इसको respect कर रहा है. So whatever filtrations coming outside, वो उसको respect करेगा. But the inside whatever filtrations coming inside, उसको वो remove कर देगा. That is the difference between this all and all selected. So how we can say to the interviewer कि all removes all the filters, internal and external, but all selected remove internal filters or implicit filters and it respect explicit filters. ये clearly दिख रहा है हमें यहाँ पे, correct? If I am not applying any kind of a, hello, अरे लेक्चर चलो 11:30 फोन कर दो निगम. Okay, understood this concept is understood. All and all selected. Any kind of a doubt in this? Online student, any kind of a confusion, any kind of a minor doubts in your mind, or you wanted to me repeat this all and all selected once again? Online student, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, all removes both implicit and explicit, but all selected removes only implicit, keeping the filters from outside. It respects the filters explicitly. You specifically use this word respect, right? So we say that in all, it remove all the filtrations
internal and external. But in case of all selected, it removes the filter from implicit, but it respect the filtration from outside, or it respect the filtration, explicit filtration को respect करता है. This is the key difference between these two, all and all selected. Okay, so let me create a new measures. In that, say, let's see, now we are going to see another one. So let's say revenue, so revenue using all except. This is one more function, all except. Okay, so let's again see calculate. This time I'm saying calculate. My expression is my revenue, and this time I'm using all except. All except. What it is giving me? Firstly, I need to pass the table name, then the column name, and what it mentioning, return all the rows in the table except for those rows that are affected by the specified column filters. Okay, so all except work like a all, but it remove the filtrations, or it let's say मेरे पास एक टेबल में 10 कॉलम है, ठीक है. ऑल एक्सेप्ट में अगर मैंने उस टेबल के अंदर के लेट से 2 कॉलम को मेंशन कर दिया, तो वो क्या करेगा, उन 2 कॉलम को छोड़ के बाकी की जो कॉलम है ना, उनके ऊपर ऑल जैसा काम करेगा, वो 2 कॉलम को छोड़ के. समझ में आ रहा है? माइंड में वो आपको ऑल पता है कैसे काम करता है. ऑल क्या करता है, सब फिल्ट्रेशन रिमूव करता है. ऑल एक्सेप्ट क्या करेगा, जो कॉलम आपने मेंशन किए हुए ऑल एक्सेप्ट के अंदर, उन कॉलम को छोड़ के बाकी के कॉलम के ऊपर ऑल जैसा ही काम करेगा, बाकी के कॉलम्स के ऊपर का फिल्ट्रेशन रिमूव कर देगा. लेकिन अगर जो 2 कॉलम आपने मेंशन किए हुए वो कॉलम अगर यूज किए हुए तो उन कॉलम को वो जैसे रेवेन्यू का मेजर आपका काम कर रहा है, उनको वो छोड़ के ही बाकी का ऑल का काम करेगा. सो लेट्स से यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स से मेरे टेबल का नाम दिया टेरिटरी डिम का, मेरा जो टेबल है उस टेबल को मैंने मेंशन किया एज अ टेबल नेम. And I'll say, let's say column name is, for example, country. मैंने country का column पास किया यहाँ पे. Now let's say what this particular expression gives as a result. So I'm passing over here. Let's understand this. Now what it gives me? It gives me a value look like a revenue. जो हमारा इनिशियल फर्स्ट मेजर था रेवेन्यू का, हर एक कंट्री के लिए मुझे तुम क्या करो, वैल्यूज प्रोवाइड करो. सो इन शॉर्ट यहाँ पे इम्प्लिसिटली फिल्ट्रेशन अप्लाई हो रहा है. करेक्ट, ये अंडरस्टूड है. यहाँ से इम्प्लिसिटली फिल्ट्रेशन अप्लाई हो रहा है. इफ आई अप्लाई फिल्ट्रेशन आउटसाइड, ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट किया, स्टिल इट इज फिल्टरिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो इन शॉर्ट ऑल एक्सेप्ट के अंदर जो मैंने कॉलम मेंशन किया हुआ है उसको छोड़ के अगर कोई अदर कॉलम से वो फिल्ट्रेशंस ले रहा है तो वो क्या करेगा, एक्सप्लिसिटली काम करेगा, मतलब ऑल रिमूव फिल्ट्रेशंस कर देगा. बट जो कॉलम मैंने मेंशन किया है उस कॉलम को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसके ऊपर वो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट बोथ फिल्ट्रेशंस काम करेंगे. राइट, जैसे ऑल सेलेक्टेड के अंदर भी हमने हमारा टेरिटरी डिम का, सॉरी हमारा जो ऑल सेलेक्टेड का मेजर है उसमें हमने क्या किया था, कंट्री का ही कॉलम पास किया था. सो व्हाट ऑल सेलेक्टेड क्रिएट, ऑल सेलेक्टेड ने क्या किया कि अगर वो पर्टिकुलर कॉलम मेरा विजुअलाइजेशन में यूज हुआ है, इन शॉर्ट इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशन जो वहां पे काम कर रहा है उस इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशन को वो रिमूव कर देगा एंड कीपिंग द रिस्पेक्टिंग द फिल्ट्रेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड. बट ऑल एक्सेप्ट इज डूइंग, ऑल एक्सेप्ट डूइंग जो कॉलम मैंने ऑल एक्सेप्ट के अंदर मेंशन किए, अगर वो कॉलम विजुअलाइजेशंस में या आउटसाइड द विजुअलाइजेशन किसी फिल्ट्रेशंस में यूज किए हुए, तो उन कॉलम को छोड़ के बाकी के कॉलम्स के ऊपर ऑल जैसा काम करेगा, रिमूव द फिल्ट्रेशंस करेगा. बट जो कॉलम मेंशन किए हुए उन कॉलम के ऊपर कोई भी फिल्ट्रेशंस, मतलब वो पर्टिकुलर
फंक्शन जो है वो एज पर रेगुलर फंक्शंस काम करेंगे, वो कोई भी फिल्ट्रेशंस रिमूव नहीं करेगा। सो हमने ऑल एक्सेप्ट के अंदर क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया कंट्री का कॉलम। नाउ इफ वी अप्लाई द फिल्ट्रेशन आउटसाइडली, स्टिल इट इज गिविंग मी अ फिल्ट्रेशंस, वो फिल्टर कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, वैल्यू मुझे दे रहा है। इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फिल्ट्रेशन आउटसाइड, बट इम्प्लिसिटली भी वो मुझे वैल्यूज को प्रोवाइड करके दे रहा है फिल्ट्रेशंस, because I'm mentioning country column inside the all except. The same way all selected मुझे क्या कर रहा है, implicit filtrations को remove कर रहा है, but it respect the filtrations coming from outside. मुझे 98 की वैल्यू दे रहा है, which is for the Australia. So बाहर से filtrations all selected ले रहा है, but inside the filtrations, inside this implicit filtrations में वो नहीं ले रहा है। एंड ऑल तो हमें क्या, ऑल क्या करता है, ऑल रिमूव ऑल द फिल्ट्रेशन, वो सब रिमूव कर देगा, बाहर से अंदर से सब कुछ। तो तीनों समझ में आ गए, ऑल, ऑल सेलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट, किसी को कुछ कुछ डाउट इसमें समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? ऑनलाइन स्टूडेंट Got it. गॉट इट? सो लेट्स से वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल टेरिटरी डीम से मैंने रीजन का एक स्लाइसर्स यहाँ पे लिया। सी अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी देखो फॉर एग्जांपल ऑल एक्सेप्ट का जो मेरा केस है, उस केस में हमने कंट्री का कॉलम पास किया था ऑल एक्सेप्ट के अंदर। सो मैंने कंट्री का जो मेरा सॉरी रीजन का जो मेरा और एक कॉलम है कंट्री के टेबल के अंदर ही, मतलब टेरिटरी का जो हमारा टेबल है उसके अंदर कंट्री का एक कॉलम तो है, लेकिन अदर कॉलम्स भी है, रीजन भी है, कॉन्टिनेंट है, अदर कॉलम्स है। मैंने क्या किया, वो अदर जो कॉलम है वो अदर कॉलम यहाँ पे फिल्ट्रेशन में एक लिया है, एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस अदर कॉलम इन माई विजुअलाइजेशन। सो अदर कॉलम क्या कर रहा है, इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशंस भी अप्लाई कर रहा है एंड एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशंस भी अप्लाई कर रहा है। सो सी ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट देगा, ऑल एक्सेप्ट आपको क्या कर रहा है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशंस को क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है। सी क्यों रिमूव कर रहा है, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट के अंदर आपने सिर्फ कौन सा कॉलम मेंशन किया हुआ है, कंट्री का कॉलम। कंट्री का कॉलम छोड़ के बाकी के कॉलम्स के ऊपर का फिल्ट्रेशन वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। दैट्स व्हाई व्हेन यू यूज अदर कॉलम्स एक्सेप्ट कंट्री कॉलम, देन इट एक्ट एज अ ऑल। ऑल का और ऑल एक्सेप्ट का उस केस में रिजल्ट सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? ऑल एक्सेप्ट के अंदर का कॉलम जो है वो कॉलम छोड़ के बाकी के कॉलम्स के ऊपर का फिल्ट्रेशन वो रिमूव कर देगा। इट रिमूव इम्प्लिसिट आल्सो, इट रिमूव एक्सप्लिसिट आल्सो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट। कंसेप्ट सबको क्लियर है? अभी किसी को कुछ डाउट है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? Yes, sir. Yes. Okay, so let me see another one. Okay, so we have this revenue,
doing this all except okay. Okay, so now I'm having some DAX functions to practice you. ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है I'll show you. एग्जाम्पल मेरे पास ये टेक्स्ट फंक्शंस है, ठीक है, कुछ टेक्स्ट फंक्शंस है. मैं ये टेक्स्ट फाइल आपको दूंगा. आई सिंपली कंट्रोल C करके कॉपी कर लूँगा. ओके, आई विल गो टू दिस मेजर्स. Okay, prior to that let's understand what is variable, and then I'll explain you what is those. You see this where दिख रहा है ना यहाँ पे, where variables. So the variables क्या होते हैं वो हम एक बार देखते हैं यहाँ पे, then we will understand on this particular text. So variables is nothing but you temporarily store some results in your measure in logics, and you use those variables inside the logic, in the same logic, not in the other logic. ओके, जैसे आप कोई वेरिएबल मेंशन करते हो, आप उस वेरिएबल को मेंशन करके, जैसे कोई बड़ा आपका मेजर है, आपने उसको एज ए वेरिएबल स्टोर कर लिया आपके लॉजिक के अंदर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू राइटिंग फर्दर मोर लॉजिक इन द सेम एक्सप्रेशन, देन आप उस वेरिएबल को रेफर करते हो इंस्टेड ऑफ अगेन राइटिंग द फुल कोड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो कैसे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे इस केस में रेवेन्यू को कैलकुलेट किया. हाउ वी कैलकुलेटेड दिस रेवेन्यू, हमने रिलेटेड फंक्शन यूज करके प्रोडक्ट प्राइस एंड ऑर्डर क्वांटिटी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड करके रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लिया. सेम वे वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑल्सो, राइट. वी ऑल्सो हैव अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन द प्रोडक्ट डिम टेबल एंड ऑल्सो हैव अ ऑर्डर क्वांटिटी, सो वी कैन मल्टीप्लाई कॉस्ट विद द क्वांटिटी. सो वी गेटिंग द टोटल कॉस्ट फॉर दिस, राइट. जैसे हमने रेवेन्यू कैलकुलेट किया वैसे हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो आई विल सिंपली कॉपी दिस and I create a new measure over here. Let's say new measure. This time my measure name is cost. Let's for I'll say revenue. Instead of revenue, I'll simply say cost. If I'm trying to enter this, Power BI tell me कि revenue का नाम already present है. You need to rename your measure name. Okay. So I'll just rename this measure name as a cost. And what changes I need to do is only instead of this price, I'm taking cost. Rest is the same. Simply say enter. Now this gives me a cost. Let's say I'll drag this over here. So it is my cost 19.75 million, and this is my revenue 34.10. So what is the profit over there? इसमें profit कितना हुआ? How we can calculate the profit? हम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर सकते हैं ना, करेक्ट. सो प्रॉफिट के लिए मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ कि वट एवर माई रेवेन्यू का जो मेरा मेजर है, माई रेवेन्यू मेजर माइनस माई कॉस्ट मेजर. So this gives me what? Profit. This gives me a profit. Understood? ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा कॉस्ट है. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज माई प्रॉफिट. सो ये प्रॉफिट का जो मेजर है, ये मेजर मैंने सिंपली क्या किया, रेवेन्यू का एंड कॉस्ट का यहाँ पे मैंने यूज कर लिया. सो इफ आई वांटेड टू अप्लाई वेरिएबल इन दिस केस, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेर. वेरिएबल को मेंशन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा वेर. वेरिएबल का नाम देंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल माय वेरिएबल ए, माय वेरिएबल का नाम ए है, इक्वल टू मेरा रेवेन्यू का जो मेजर है वो. शिफ्ट एंटर में नेक्स्ट लाइन को जाऊंगा, यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूंगा, वेरिएबल बी इक्वल टू माय कॉस्ट का जो मेजर है वो. नाउ आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स, वेरिएबल ए एंड बी. ए क्या है, रेवेन्यू है. बी क्या है, कॉस्ट. अभी रेवेन्यू एंड कॉस्ट के लिए मैंने इस पर्टिकुलर लॉजिक में उसको नाम दे दिया कि ए एंड बी है वो. मैं बस इस लॉजिक में उनको कुछ अलग नाम से, स्मॉल नेम से नोटिफाई कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ अगेन यूजिंग रेवेन्यू मेजर्स, अभी माइट बी दिस रेवेन्यू का मेजर कोई बड़ा लॉजिक होगा आपका, कोई किसी और मेजर आपने क्रिएट किया हो,
तो आप सिंपली उसका रेफरेंस ले लिया आपने यहाँ पे। तो मैं इसको जब रन करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर मेजर को, तो इन केस ऑफ वेरिएबल आई विल से रिटर्न, दिस इज द सिंटैक्स। मैं बोलूँगा कि रिटर्न, क्या रिटर्न करो, रिटर्न मुझे करना है a माइनस बी। अंडरस्टूड? इंस्टेड ऑफ सेइंग रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आई एम सेइंग रिटर्न a माइनस बी। सो आई विल सिंपली से कैलकुलेट, मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ एंड स्टिल इट इज गिविंग मी सेम रिजल्ट। बस यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए एंड यूजिंग दोज वेरिएबल्स हमने वैल्यूज को कैलकुलेट किया। विद दोज वेरिएबल्स आपके बहुत काम आएंगे आगे। आप सेम लॉजिक्स में मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करके उनको फर्दर मोर एक्सपांड करने के लिए लॉजिक को यूज कर सकते हैं। बट ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल इसी मेजर के लिए है बस। आप ये वेरिएबल ए दूसरे मेजर में नहीं यूज कर सकते, वहां पे भी आपको वेरिएबल ए अगेन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली कोडिंग होता है या लैंग्वेज होता है, हम एक बार किसी लॉजिक में वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो हम उसी लॉजिक में उसको यूज करते हैं। अगर कोई नया लॉजिक है तो उसमें अगेन वी क्रिएट वेरिएबल्स। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ये? अगर मैंने वेरिएबल इस मेजर में क्रिएट किया है तो मुझे इधर ही यूज करना पड़ेगा। आई कैन क्रिएट अनदर मेजर एंड कांट यूज दिस वेरिएबल ए अगेन ओवर हियर। मुझे वहां पे अगेन स्पेसिफाई करना पड़ेगा वेरिएबल ए इज इक्वल टू रेवेन्यू। ओके, सेम वे यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट फंक्शन है जो अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए, एंड लास्ट में मैं कोई एक वेरिएबल रिटर्न करके चेक कर रहा हूँ कि वेरिएबल क्या रन करना है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगेन वी गो टू दिस पर्टिकुलर रिटर्न फंक्शन, और यहाँ पे मैंने लेट्स से वेरिएबल एक बनाया, तीसरा वेरिएबल लेट्स से सी इक्वल टू बी माइनस a, and in this case I am saying return c. Okay, I'll say return c, returning I am c, simply say return enter, still give me same result. Now what is happening, वो a को कैलकुलेट कर रहा है, उसको पता है a क्या है, b पता है क्या है, देन वेरिएबल c वो कैसे लेगा कि वेरिएबल आपने जो ऊपर के मेंशन किए तो वो b माइनस a को करके एक रिजल्ट क्रिएट करेगा। आप बोल रहे हो कि मुझे रिजल्ट चाहिए कौन सा, सी। अगर इस इंस्टेड ऑफ सी आई से ए, तो वो क्या करेगा, वट एवर रेवेन्यू की जो वैल्यू है, सॉरी एवरेज नहीं, एल से रिटर्न ए, एल से इंटर, तो ये जो सी प्रॉफिट की वैल्यू रेवेन्यू की वैल्यू सेम हो जाएगी, बिकॉज व्हाट वी स्पेसिफाइड ओवर इज ए इज रेवेन्यू। आई कैन रिटर्न बी आल्सो, वो कॉस्ट दिखाएगा, दिस कॉस्ट, एंड इफ आई रिटर्न सी वो प्रॉफिट दिखाएगा। Understood how these variables are created and how you return it? The same way we have these text functions, multiple variables are created over here, and each variables I can check the results over in selecting that particular variable. Let's say I'll just copy this text functions and I'll go to the my calculations. I simply create a new measure, I paste it over here and I'll say simply enter. ओके, नाउ दिस रिटर्न, ये रिटर्न के बाद क्या है, कॉन्केनेटेड नाम का कोई एक वेरिएबल जो क्रिएट किया हुआ है, दिस वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्केनेट, इसका फंक्शन क्या है, कॉन्केनेट टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। टेक्स्ट वन क्या है, रोहित, टेक्स्ट टू क्या है, अग्रवाल। तो ये कॉन्केनेट फंक्शन मुझे क्या करेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देगा, मुझे इसका रिजल्ट देखना है। सो लेट्स से आई विल गो टू दिस टेक्स्ट फंक्शन, इसको मैंने ड्रैग करके लेके आया स्क्रीन के ऊपर, I'll simply convert into the card visual and you see this text function मुझे क्या रन करके दे रहा है, रोहित अग्रवाल। अंडरस्टूड? जैसे yesterday हमने कॉन्केनेटेशन के लिए एम्परसाइड यूज किया था, याद है, एम्परसाइड हमने यूज किया था। अगेन कॉन्केनेट एक्सेप्टिंग ओनली टू पैरामीटर, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, मल्टीपल पैरामीटर नहीं हो सकते। सो अगेन दिस इज द, वो ड्रॉबैक बोल सकते हैं या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कैलकुलेट का। अगर दो वैल्यूज है तो यू कैन कॉन्केनेट देम, बट अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो यू कैन एम्परसाइड यूज कर सकते हो या कंबाइन वैल्यूज कर सकते हो, व्हाटएवर। नाउ इन दिस केस लेट्स से आई वांटेड टू सी द रिजल्ट फॉर दिस कंबाइन वैल्यूज, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट कॉपी दिस कंबाइन वैल्यू वेरिएबल का नाम, इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्केनेट आई पुट कंबाइन वैल्यू ओवर हियर,
कंबाइन वैल्यूज, ये जो डैक्स है, ये क्या फंक्शन है? कंबाइन वैल्यूज। आपने यहाँ पे एक सेपरेटर पास किया हुआ है, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। अगेन टेक्स्ट वन क्या है? रोहित। टेक्स्ट टू क्या है? अग्रवाल। अभी आउटपुट इसका क्या आने वाला है? लेट्स से इंटर, तो रोहित डैश अग्रवाल। ऐसे आप ये जो टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे दिए हैं उनको चेक करो कि व्हाट इट गिव्स यू रिजल्ट। ये यूनिकोड क्या रिजल्ट दे रहा है, कंबाइन वैल्यूज क्या दे रहा है, फाइंड वैल्यूज क्या दे रहा है। यू चेक दिस। आपको ये फंक्शंस कभी काम में आएंगे, टेक्स्ट फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट कुछ टेक्स्ट फंक्शंस है, मल्टीपल है, बट दोज आर द कॉमनली यूज एंड वाइडली यूज। सो आप इनको चेक करो, व्हाट इट गिव्स यू रिजल्ट। अंडरस्टूड? I'll send you this in a WhatsApp group. Okay, text functions here, whatever it having. Again, there is one more functions. We'll just take two functions and we will stop. Okay, function is called as a add columns and selected columns. ठीक है, important functions है कि what it gives you a result. ठीक है, so let's understand from the selected columns. If I wanted to learn about DAX more, I simply go to the browser and I'll search over for the DAX guide. ठीक है, DAX guide को मैं सर्च करूंगा. I'll just hit enter. Opening the DAX guide. First result. This gives you A to Z DAX. There are multiple DAX. बहुत सारे. ठीक है, यहाँ पे मैं let's say I wanted to see the all selected. You see this all except हमने जो देखा अभी वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है. If I select let's say all, slow again, just a minute. Okay, so let's say I'm selecting all selected. So all selected का वो मुझे क्या करेगा? सिंटैक्स देगा, डेफिनेशन देगा कि ये all selected क्या रन करता है. इट गिव्स यू सम पैरामीटर्स कि ये जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो ना, टेबल नेम और कॉलम नेम, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देगा कि रिमूव्स ऑल फिल्टर्स ऑन द स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम अप्लाइड विद इन द क्यूरी, ऑल कॉलम इन द सेम बेस टेबल. कॉलम नेम यहाँ पे जो पास कर रहे हो आप, जो टेबल यहाँ पे आप दे रहे हो उसी टेबल के अंदर के कॉलम नेम रहेंगे और कॉलम इन द सेम बेस टेबल. ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ रिमार्क्स रहेगा. रिटर्न्स अ टेबल, इट रिटर्न्स अ टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, व्हाटएवर कुछ डैक्स यहाँ पे उसने यूज़ करके दिया, आप इनको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो. एग्जाम्पल कुछ प्रोवाइड किया हुआ है. सो इस वे से आप यहाँ पे उनको चेक कर सकते हो. यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हो. राइट, समझ में आए? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस what we are going to learn for the selected columns and add columns. I'll go to the S for the selected column. Selected column. Yeah. Depend upon conditions. मतलब इतना नहीं यूज होता. इम्पोर्टेंट जो है वो हम कवर कर रहे हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है ज़्यादातर. बट अगेन वो तो सिनेरियो बेस है. अगर कोई अलग नया डैक्स आपको यूज़ करना है देन अगेन जैसे मैं बोला कि डैक्स गाइड में आपको हर दिन एक दो डैक्स आप देखते चलो कि वो डैक्स फंक्शन क्या है, क्या आउटपुट देता है. राइट, एटलीस्ट हमें वो भी पता रहेगा कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन गिव्स यू दिस काइंड ऑफ आउटपुट. देन व्हेन यू क्रिएट द लॉजिक आपको कहीं पे वो रिमाइंड होता रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था. So later on you can Google it or you can explore on this particular text to get the particular result. और अभी तो चैट जीपीटी आया है तो मतलब चैट जीपीटी से भी बहुत हेल्प आउट हो जाता है कि आपको डायरेक्टली रेडीली डैक्स मिल जाता है प्रॉपरली. बस आपको थोड़ा उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है. ओके, सो सेलेक्ट कॉलम्स डैक्स क्या करता है? ये टेबल मैनिपुलेशन है. टेबल मैनिपुलेशन मतलब रिटर्न्स अ टेबल. आपको अगर आपके टेबल में से आपके पास लेट से एक बड़ा टेबल है 100 कॉलम्स है, उसमें आपको उस टेबल को यूज़ करके एक नया टेबल बनाना है बट सेलेक्टेड कॉलम. लेट से मेरे पास 100 कॉलम है
10 कॉलम का मुझे एक नया टेबल बनाना है, सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस सेलेक्ट कॉलम फंक्शन। इसमें क्या रहेगा, रिटर्न्स अ टेबल विद द सेलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल्स एंड अ न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशंस। इसका मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे टेबल का नाम पास करूंगा, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, जिस टेबल से मुझे कुछ कॉलम चाहिए और एक नया कॉलम भी चाहिए, ठीक है, विद द एक्सप्रेशंस। सो सिंपली आई विल गो टू दिस माय पावर बीआई डेस्कटॉप, आई विल गो टू द टेबल व्यू एंड लेट्स डू दिस for example, okay, let's say for example this table, let's consider this table, sales territory key, region, country and continent। अभी मुझे एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें सेल्स टेरिटरी की हो, जिसमें रीजन हो, ये 2 कॉलम चाहिए मुझे, एंड जो कंट्री का कॉलम है ना, मुझे वो एक नए कॉलम के फॉर्मेट में चाहिए, जो सेल्स टेरिटरी की डैश रीजन 1 डैश नॉर्थ ईस्ट या 1 डैश यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कंट्री का कॉलम। जो हमारा डैक्स से कैलकुलेट होके आने वाला नया कॉलम है वो कैसे रहेगा, मेरा सेल्स टेरिटरी की रहेगा 1 डैश कंट्री का कॉलम, ऐसा एक थर्ड कॉलम आएगा। मतलब ऐसे 3 कॉलम मुझे उस नए टेबल में चाहिए। कौन से, फर्स्ट इज द टेरिटरी की, सेकेंड वन इज द रीजन एंड थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 1 एंड सेल्स टेरिटरी की एंड कंट्री। ऐसे मुझे 3 कॉलम एक नए टेबल में चाहिए। सो इन दैट केस आई कैन यूज दिस सेलेक्ट कॉलम फंक्शन। सो अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है, सो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू टेबल, नॉट अ कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर, वी आर क्रिएटिंग अ टेबल ओवर हियर। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू टेबल, आई विल से मैं इसको नाम दे रहा हूँ, लेट्स से टेस्ट टेबल फॉर एग्जांपल, एंड आई विल से सेलेक्ट कॉलम। सेलेक्ट कॉलम क्या पास करके देता है, वी नीड टू पास टेबल नेम एंड एक्सप्रेशंस। दिस नेम, ये जो नेम दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नेम मतलब नया कॉलम जो आप बनाने वाले हो डेक्स एक्सप्रेशन के साथ, उसका नाम रहेगा। सो आई विल से यहाँ पे टेबल मेरा रहेगा टेरिटरी डिम, ये मेरा टेबल रहेगा। कौन से कॉलम चाहिए मुझे यहाँ से, टेरिटरी डिम के अंदर से लेट्स से मुझे कॉलम चाहिए की का, फर्स्ट मेरा कॉलम रहेगा की। उस की कॉलम के लिए मुझे कौन सा कॉलम रेफर करना है, टेरिटरी का जो सेल्स टेरिटरी की का जो कॉलम है वो मुझे चाहिए, करेक्ट। देन नेक्स्ट कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, नेक्स्ट कॉलम मुझे चाहिए रीजन का, करेक्ट। सो मैं अगेन यहाँ पे कॉलम को नाम दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आपके कॉलम के नाम जो है वो चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड। जैसे मैंने यहाँ पे रीजन नाम दे दिया, एंड आई विल से तुम रीजन का कॉलम ले लो टेरिटरी डीम से, एंड माय थर्ड कॉलम इज माय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टेरिटरी की एंड माय कंट्री। सो आई विल से मैं इसको नाम दे रहा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, सरोगेट की करके ऐसे कोई नाम दे रहा हूँ इसको। ये कॉलम क्या रहेगा, ये एक एक्सप्रेशन रहेगा। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, मेरा सेल्स टेरिटरी की एम्परसाइड, then I can put a separator like this dash, again ampersand, I can say my country column, territory names का country column. This is what 3 columns we needed. I just close the bracket and say enter. Now you can see हमारे पास जो नया टेबल क्रिएट होके आया उसमें फर्स्ट कॉलम की का है, जिसमें टेरिटरी डीम के अंदर की टेरिटरी की है। सेकंड है रीजन का कॉलम, जो टेरिटरी डीम के अंदर का रीजन का है, एंड थर्ड वन इज द ये पर्टिकुलर की एंड कंट्री का जो कॉलम था उसका कॉम्बिनेशन है। सो दैट्स व्हाट दिस सेलेक्ट कॉलम इज डूइंग। ओके, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स। इंटरव्यूअर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, डिफरेंस बिटवीन द डैक्स फंक्शंस। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपने वो पर्टिकुलर फंक्शंस अंडरस्टैंड, कंसेप्ट अंडरस्टैंड की। फंक्शन इज ईजी है, फंक्शन ईजी है, आपको पता है कि सेलेक्ट कॉलम क्या करेगा, पर्टिकुलर टेबल के अंदर के कॉलम्स निकाल के एक नया टेबल बना के देगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेलेक्ट कॉलम्स एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज ऐड कॉलम्स, इसमें फर्क क्या है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सेलेक्ट कॉलम समझ में आया सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट, सेलेक्ट कॉलम समझ में आया। सेलेक्ट कॉलम्स ओनली
gives a columns which tables you specify over here. जो टेबल आपने स्पेसिफाई किया है उसी टेबल के अंदर के जो कॉलम्स आपको चाहिए विथ सम टैक्स एक्सप्रेशन के जो एक्सप्रेशन के साथ क्रिएट होने वाले कॉलम्स है फ्रॉम द सेम टेबल, वो आपको यहाँ पे क्रिएट करके देगा. दैट्स व्हाट दिस सेलेक्ट कॉलम इज डूइंग. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, now let's understand what add columns gives you. So again, I'll creating a new table. I'll say new table. I'll say test table 1 equal to, this time I'm using add column function. Add columns. Now you see इसका definition क्या है? Returns a table with the new columns specified by a DAX expression. अभी यहाँ पे टेबल कौन सा है? लेट्स से मैं टेरिटरी डिम का टेबल यहाँ पे ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल लिया. इस टेबल के अंदर मुझे लेट्स से एक नया कॉलम चाहिए सरोगेट की, जो कि कॉम्बिनेशन है माय सेल्स टेरिटरी की एम्परसाइड डैश एम्परसाइड and gives me countries. ठीक है. Now what is happening? जब अपन ने ऐड कॉलम यूज किया तो ऐड कॉलम में क्या हुआ? जो आपका बेस टेबल था टेरिटरी डिम, उसके सारे कॉलम प्लस आपने जो नया कॉलम यहाँ पे बनाना चाहते हो एक्सप्रेशन के साथ, वो कॉलम, ऐसे सारे कॉलम्स एक नए टेबल के फॉर्मेट में क्रिएट हुए. ठीक है. तो मतलब टेस्ट टेबल 1 में व्हेन वी यूज ऐड कॉलम में क्या रहेगा? वट एवर द ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द बेस टेबल प्लस अ न्यू कॉलम्स दैट यू वांटेड टू क्रिएट यूजिंग एक्सप्रेशन, दैट ऑल द कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द व्हेन यू यूज ऐड कॉलम्स. एक टेबल क्रिएट होगा जिसमें जो बेस टेबल आपने मेंशन किया है उसके सारे कॉलम एंड जो नया कॉलम आपको एक्सप्रेशन के साथ चाहिए वो कॉलम, ऐसे सभी कॉलम्स का एक नया टेबल बनेगा इन केस ऑफ ऐड कॉलम. बट सेलेक्टेड कॉलम में क्या होता है? सेलेक्टेड कॉलम में बेस टेबल के अंदर के सेलेक्टेड कॉलम्स प्लस डैक्स एक्सप्रेशन के साथ जो बनाने वाला नया कॉलम, इतने ही कॉलम्स का एक नया टेबल बनता है. फर्क समझ में आया? whenever you use select column, in that case selected columns from the base table and the new column using the DAX expression, उन सभी कॉलम्स का एक नया टेबल बनता है. एंड व्हेन यू यूज ऐड कॉलम्स, उसमें बेस टेबल के सारे कॉलम एंड डेक्स एक्सप्रेशन से बनने वाला कॉलम ऐसे मिलके एक नया टेबल बनता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स. अंडरस्टूड? yes, as it is with the name as it is. ओनली द डिफरेंस इज डेक्स फंक्शन के जो आपके कॉलम्स एक्सप्रेशन के साथ जो नया कॉलम बनने वाला है वो ऐड हो जाता है. तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डोंट वी डायरेक्टली ऐड इन द बेस टेबल इटसेल्फ एज अ कैलकुलेटेड कॉलम, राइट? बट समटाइम्स यू नीडेड अ सेपरेट टेबल, you don't want to touch the base table. Understood these ones? Same way, next lectures we are going to see some more functions like summarize and summarize columns. Those are the most important questions asking in the interview. Summarize and summarize columns. Once summarize and summarize columns over, then also we looking for the time intelligence functions. Different time intelligence functions. Same period last year, date add, dates between, different function, previous month, next month, whatever the functions are there, important functions, those we are going to learn in the next lectures. Okay, so DAX को थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस है एंड थोड़ा स्लोली जा रहे हैं हम, तो इनिशियली DAX थोड़ा चलेगा और 1-2-3 दिन. Then once DAX is, we are some familiar with some DAX functions, we understanding the concept behind it, then we actually starting the reporting. ओके, उस केस में हमें रिपोर्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वी माइट बी रिक्वायर्ड 2 or 3 days टू क्रिएट द रिपोर्ट्स.
Once it is done, then we'll finish with the DAX itself and the reporting itself. Starting with the Power BI services part. Okay, but this takes some time. Okay, अभी तक हमने जितना DAX पढ़ा है वो समझ में आया ना? जितने फंक्शंस हमने पढ़े, कौन से फंक्शंस हमने पढ़े? वी नॉर्मली सी एग्रीगेटेड फंक्शंस, राइट? सम हमने इटरेटर फंक्शंस भी देखा, सम एक्स फंक्शंस, देन आल्सो वी सॉ सम filter functions, also we saw some all selected, all except. Also we see these select columns, add columns, which is in the category of a table functions. Okay, mostly aggregated function जो है वो एक column functions इनको कहा जाता है. column functions क्यों? Because you taking a reference of any column. आप aggregations किसी column के ऊपर करते हो, so those are called as a column functions, जिसमें aggregated functions use होते हैं. नेक्स्ट पार्ट उसमें आता है, नेक्स्ट एडवांसमेंट आता है इटरेटर फंक्शंस. एग्रीगेटेड फंक्शन के आगे वाला क्लास आता है इटरेटर फंक्शंस, जिसमें आप क्या करते हो, कोई एक्सप्रेशन पास करते हो एंड यू क्रिएटेड लॉजिक लाइक मुझे मल्टीप्लिकेशन के साथ एक कॉलम चाहिए या मुझे एक मेजर ही बनाना है डायरेक्टली, वट एवर. सो यू यूज दोज इटरेशन फंक्शंस. आफ्टरवर्ड्स आता है कि आप टेबल फंक्शंस आपको टेबल क्रिएट करने, you know about the calculated column, you know about the measures, then you wanted to create a table. That's what this all selected is doing. It create a table. Also filter functions we see that also create a table. Also we are going to see the summarize and summarize column, that is also the table function. It is also important. Sometimes आपको एक backend में table बनाना है, not actual table in the your model, but just a calculation point of view आपको table बनाना है, and then you wanted to use those table for the calculations. तो मतलब आप एक इमेजिनरी टेबल बस कैलकुलेशन को यूज करके बना रहे हो. अंडरस्टूड? सो फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स फैक्ट का जो अपना टेबल है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन टेबल, राइट? वहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की एंड ऑर्डर की क्वांटिटी, ये कैसे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, प्रोडक्ट की वहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में. सो वाई कांट, अगर मुझे देखना है कि मुझे एक इमेजिनरी टेबल बनाना है बैक एंड में फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ माई टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बेस अपॉन माई प्रोडक्ट की, तो मैं वहाँ पे जैसे हम ग्रुप बाय करते हैं, प्रोडक्ट की को मैंने ग्रुप बाय किया एंड आई क्रिएटेड वन टेबल जिसमें एक प्रोडक्ट की रहेगा और उस प्रोडक्ट की एसोसिएटेड जितनी ऑर्डर क्वांटिटी रहेंगी उसका समराइजेशन करके मुझे दिखेगा, इन शॉर्ट ग्रुपिंग करके दिखेगा, काइंड ऑफ अ समराइजेशन हुआ उस डेटा. सो ऐसे हम टेबल्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेटली वी क्रिएट एज अ बैकएंड इन आवर मेजर्स लॉजिक and use those, taking the reference of those tables we create some calculations. ऐसे भी होता है. So that is another part, some advancement of the DAX, summarize and summarize columns we have. Okay, again next class आता है कि if you wanted to some time related calculations like time intelligence functions we have, right? So again we are going to study those time intelligence functions. Once those are covered little bit, we are keeping touch with all the functions, important functions. Then also we are going to study some more functions, जैसे important functions अगर कुछ रहेंगे तो I'll see and I'll tell you on the upcoming class कि those also need to be touched. Okay, at least जो class में हम functions कर रहे हैं, at least go through the functions again, try it by yourself and understand करने की कोशिश करो कि why those functions giving you such results, right? एक दो दिन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा वो माइंड में आपके फंक्शंस बैठ जाएंगे, यू कैन थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होता जाएगा. नॉट सर्टनली बूस्ट अप, बट थोड़े इंटरवल के टाइम में वो थोड़ा बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे टाइम पास हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे वो बूस्ट होता जाएगा, राइट? क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा हम गड़बड़ा जाते हैं. मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ही स्पेशली तुम लोगों को ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या रहेंगी उस टाइम, राइट? जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा आपको, यानी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते, डिफरेंस पूछेंगे. समटाइम्स दे, जैसे हमने ऑल का एक एग्जांपल लिया, वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज, राइट? सो इंटरव्यूअर माइट बी गिविंग यू अ सिनेरियो कि मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो हाउ वी कैन, व्हाट इज माय अप्रोच, व्हाट इज योर अप्रोच टू कैलकुलेट द परसेंटेज, राइट? सो उस केस में वो आपका माइंडसेट देखेगा कि आपका थिंकिंग कैसे जा रहा है, आप ऑल फंक्शन यूज कर देगा. उस केस में थोड़ा सिंटैक्स का इधर उधर चल जाता है. इंटरव्यूअर ऑल्सो मतलब उसको पता होता है कि माइट भी आप एक नॉर्मल शीट पे डैक्स टाइप कर रहे हो तो सिंटैक्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन योर कंसेप्ट, आप क्या किस लेवल से जा रहे हो.
तो फर्स्टली आपको ऑल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट? सो इफ she or he not seeing any kind of all function in your DAX logic, then it a question mark कि आपने फिर ओवरऑल सेल कैसे कैलकुलेट किया, परसेंटेज कैसे निकाल रहे हो, राइट? सो अप्रोच देखा जाएगा वहाँ पे आपका कि कैसे आप डैक्स लिखते हो एंड कौन से फंक्शंस को टच करते हो उस केस में। उसमें ऑल आपका कैलकुलेट फंक्शन टच होगा, आपका ऑल फंक्शन टच होगा, आपका डिवाइड फंक्शन टच होगा। 3 फंक्शन तो उधर ही आपके चेक कर लेगा यूजिंग वन सिनारियो। अंडरस्टूड? सेम वे देर इज अनदर सिनारियो कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निकालते हैं, राइट? देर इज अनदर सिनारियो कि मेरे पास करंट ईयर का सेल है एंड आई एम हैविंग ऑल्सो द प्रीवियस ईयर सेल। So tell me about the how your approach to calculate the year or year growth, YOY जिसको बोला जाता है in terms of finance, ठीक है? मंथ और मंथ ग्रोथ क्या है? So this kind of questions when we understand the time intelligence, at the time also I'm going to explain you why how you calculate this YOY over there. Okay, so don't worry about it. We are going to touch every aspect of the DAX in terms of functions, which I felt is the important. Again, DAX kind of a vast, lots of functions are there. You need to try by yourself also, because मेरे साइड से मैं तो 100% दूंगा ही, बट आई नीड 200% फ्रॉम योर साइड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डैक्स। आपको खुद से भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी चीज़ें। देर आर मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स इन द वी हैव, राइट? मतलब मार्केट में अवेलेबल है यूट्यूब चैनल, जैसे कर्बल है, देन पावर बी ट्यूटोरियल्स है, गाय इन अ क्यूब है, हाउ टू पावर बी आई है, SQL बी आई है। ये मल्टीपल यूट्यूब चैनल स्पेसिफिकली फंक्शंस, न्यू अपडेट्स, लेट्स से खासकर SQL भी है, SQL भी है करके जो चैनल है, वो आपको स्पेशली वो एक फंक्शन को चूज करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑल सेलेक्टेड, उस पर्टिकुलर फंक्शन के रिगार्डिंग उनका एक 30 मिनट्स का एक पूरा वीडियो होता है कि दोज फंक्शंस आर हाउ यू कैन यूज दोज फंक्शंस, उसका एक्चुअल यूज केस क्या है, बैकएंड में कैसे वो काम करते हैं, इन ऑर्डर टू डीप डाइव इनटू द फंक्शंस। ठीक है, थोड़ा उनको भी रेफर करना अभी चालू करो साइड बाय साइड। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा एक एक्सपोजर मिलेगा ज़्यादा। आप इसी लेवल तक फैमिलियर नहीं रहोगे, थोड़ा और एक्सपोजर मिलेगा, नए यूज केसेस मिलेंगे, राइट? तो इस वे से अच्छा है कि मैं इसको नहीं रेफर करता। मैं मोस्टली मैंने जितने नाम बताया, गोरिल्ला बी आई, SQL बी आई, गाय इन क्यूब, हाउ टू पावर बी आई, कर्बल, दोज आर द इम्पोर्टेंट। मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ, रेफर ऑलवेज दोज वीडियो, दोज आर काइंड ऑफ मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। सो आई रेफर दोज वन। Okay, fine then. We'll stop today and we'll connect on Monday. Okay, to understand more on DAX. ठीक है? और ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग ऑफिस क्यों नहीं आ रहे आज? सब लोग घर से ही रहो। तो मुझे अकेले के लिए बुलाया क्या यहाँ पे?